جی ہاں بات کریں گے. ہاں تو یہ عید میلاد النبی کے تعلق سے بولے تھے بات کر لینا. جی ہاں تو بتا رہے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت دلالہ کہتے ہیں اس کو. بدعت جی جی عید میلاد النبی کو. ہاں اچھا اور یہی بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے اس کو بدعت کہہ رہے ہیں. ہاں کیونکہ برتھ ڈے تو منانا نہیں ہے نا. سب سے پہلی بات ہے کہ برتھ ڈے کون مناتا ہے؟ ہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کو نعمت سمجھ کر لوگ خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے تھوڑی مناتے ہیں. اچھا کس دن پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. بتاؤ تو آپ ہی پھر بتاؤ کب پیدا ہوئے. آپ بدعت پھر اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں کب پیدا ہوئے بتاؤ نا، آپ ہی بتاؤ نا. سوموار کے دن اور تاریخ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول وہ صحیح روایتی نہیں ہے نا. کو کس نے کہا صحیح روایت نہیں ہے؟ آپ بتاؤ نا کس میں کس نے کہا؟ اب دیکھو میں ہی بتاؤں یار، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، کس نے کہا؟ بہت سارے علماء کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں نا، آپ نے نہیں کتاب پڑھی ہے، آپ علماء کے مقلد ہیں. نہیں ہاں میں علماء سے مقلد ہوں. اچھا علماء کے مقلد ہیں آپ. جی یہ بتائیے، اب علماء نے آپ کے بدعت اس کو کہہ دیا تو آپ نے بھی بدعت کہہ دیا ہے نا. ہاں جی لیکن آپ کے علماء نے کبھی بتایا کہ بدعت ہے کیا چیز؟ ہاں بتاؤ، آپ بتاؤ کیا بدعت ہے؟ کہ آپ ہی بتاؤ سن لیں گے. آپ کے علماء نے کیا ہے؟ آپ کے علماء نے نہیں بتایا کہ آپ ہمارے علماء بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ اور دین میں نئی چیز پیدا کرنا بدعت ہی ہے. اچھا اب یہ جو منا رہے ہیں نا، جو میلاد منا رہے ہیں نا، وہ نئی عید ہو گئی ہے نا وہ. اچھا یہ نئی عید ہو گئی، اس کے لیے بدعت ہو گئی. ہاں ارے لوگ یار نئی عید منا رہے ہیں. اچھا عید تو مبارک، سنیے. عید میلاد مبارکباد منا رہے ہیں. مبارکباد کس میں مناتے ہیں بولو؟ اچھا ایک عید الضحیٰ میں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ میں مناتے ہیں، عید الفطر میں مناتے ہیں. سنو، لوگ جی بولو. نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور مجمع ہاں جی اللہ اکبر کہتا ہے، معلوم ہے نا؟ جی ہاں معلوم ہے. بولو. یہ کسی صحابی سے تو ثابت نہیں ہے. اچھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں نئی بات پیدا کرتے ہیں وہ بدعت ہے، تو یہ بدعت کیوں نہیں؟ پھر تو سارے مسلمان بدعتی ہو گئے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور سب لوگ سارے مسلمان جو اصول دیوبندی آپ کی جماعت کے لوگ جو لوگ بناتے ہیں اسی اصول میں کوئی مسلمان بچتا نہیں ہے، سارے کے سارے بدعتی ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں یہ کسی صحابی سے کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ کسی صحابی نے ہاں نعرہ تکبیر لگایا ہو اور سارے صحابہ اچھا نے اللہ اکبر کہا ہو. جی ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے. ہے نا. لیکن جی سب سے پہلے آپ کے جو ہاں مولوی ہیں، سنیے جی سنیے آپ بھی اس کو تھوڑا ثابت کر کے بتا دو کون سے صحابی نے میلاد النبی بنائے ہیں. سارے صحابہ. سنیے ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کو صحابہ کرام نے یاد کیا اور ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں صحابی رسول نے منایا بھی، لیکن مروجہ طور پر نہیں منایا جیسے آج کی تاریخ میں ہوتا ہے، ایسا نہیں منایا. لیکن کہیں کہیں ایسے کچھ صحابہ جمع ہو کر یا کسی طرح سے، مطلب اس طرح سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اس کو المواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور امام حجر عسقلانی امام حجر المکی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اور اس کو جو ہے یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. بہت سارے محدث نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے منایا ہے مگر مروجہ طور پر نہیں منایا ہے. اچھا اور اس کے بعد میں جو سلف صالحین. سنیے یار. سنیے ہاں جی بولیے. آپ بھی سنیے، میں ایک بات بولتا ہوں. جی دیکھو خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اس کی خوشی منانا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں بھی دنیا سے پردہ ہوئے، ہے نا. وہ بات سچ ہے نا. مگر یہاں پہ کیا ہو رہا معلوم کیا؟ اس کے نام سے جلوس نکالتے ہیں لوگ. سنیے ہو گیا آپ کا جلوس نکالتے ہیں. یہاں سے لے کر وہاں تک نعرے لگا کر جلوس نکالتے ہیں. ہاں ہو گیا آپ کا. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ ہو گیا آپ کا. سنیے میں بتاتا ہوں. جی
बस आपके पास अक्ल है या कोई किताब में भी लिखा हुआ है कि नहीं मना सकते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया तो नहीं मना सकते हो? ये सिर्फ आपका अकल है या किताब में भी है? नहीं, ऐसे ही है। मतलब आपका अकल है ना, यहाँ पर किताब नहीं है ना, आपके पास कोई दलील नहीं है। सल्फ सालहीन से लेके आज तक 1450 साल के अंदर किसी के किताब से आपको तो नहीं ना आप ये बात बता रहे हैं। आप अपने मर्जी से बता रहे हैं। आपके जो मौलवी ने आपको सिखा दिया वही आप बता रहे हैं ना, किताब से तो नहीं ना बता रहे हैं आप जी। तो यार वो हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है, वो भी किसी के लिए भी नहीं हुज्जत होगा। अपना अकल कोई दौड़ाएगा तो अकल दीन नहीं हो सकता ना जी। हाँ, तो अकल से आप रद्द करेंगे तो ये तो दुरुस्ती नहीं है। वो तो आप सोचते रहे हमें उससे क्या लेना देना है। शिया बहुत सारा काम करते हैं अकल से ही, बहुत सारा कादियानी करते हैं, तो अकल हुज्जत नहीं है। हमारे पास कुछ ना कुछ तो है ना। तो जितने भी मुहद्दिसीन जो गुजरे हैं उन्होंने लगभग दर्जनों की तादाद में मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है। अगर ये बिदात होती तो इसका रद्द करते कि सहाबा ने नहीं मनाया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, लिहाजा ये बिदात है। तो लेकिन अगर ये बिदात होती तब रद्द करते ना, बिदात नहीं था इसलिए जाने दिया लोगों ने। अरे यार, बिदात जैसी चीज को जो पूरी उम्मत को गुमराही की तरफ ढकेले और मुहद्दिसीन अपनी किताबों में नकल करें और उसके अपोजिट में उसका रद्द ना करें, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा सा सोचे ना, हो सकता है क्या ऐसा? मालूम नहीं, इसके बारे में इल्म नहीं है मुझे। तो आज का जो मौलवी है, आपके जो मौलवी लोग हैं, चाहे वो तारिक मसूद हो या जो भी है, जितने भी मौलवी हैं वो आप को गुमराह करते हैं। आप अपने उसको अकल से अपने समझाते हैं। उनसे पूछिए भाई, ईद मिलादुन्नबी जो है उसका रद्द कितने लोगों ने किया है कि उसको नहीं मना सकते? आप अपने अकल से क्यों कह रहे हैं? वरना लाइए दलील पेश कीजिए कि ये जो कलमा हम लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ, ये किसी सहाबी ने पढ़ाया? किसी को नहीं पढ़ाया, बल्कि दूसरी तरह पढ़ा रहे थे। और ये जो खुतबा पढ़ते हैं नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, ये खुतबा भी तो किसी सहाबी ने नहीं पढ़ा, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, और पढ़ते सब लोग हैं। तब बिदात नहीं होता है कि दीन में नई बात, नया दरूद पैदा कर रहे हैं। ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं ये भी तो नया ही है, मुहद्दिसीन ने इजाद किया इसको जी। हाँ, तब बिदात नहीं नजर। इसके बारे में इंशाअल्लाह इसके बारे में देखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, नहीं, आपको गुमराह करेगा सामने वाला। मुझको कॉल कॉन्फ्रेंस पे लेकर या जहाँ पर जिससे भी आपको बात करना हो मुझसे बात कराइएगा, फिर समझ में आएगा ये किस तरह से वो डांडी, हाँ, किस तरह से सामने वाला डांडी मारता है ना, तो मैं वहाँ पर पकड़ करूंगा। अच्छा, ठीक बात है, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है तो आपको तो गुमराही कर देगा ना वो। अच्छी बात है, छोड़ो इसके बारे में। आप एक बात और, वो बोलो पहले। हाँ, मैं तो मुंबई से बात कर रहा हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। अब मेरा नंबर किसने दिया आपको? अब कोई आपके संगत वाला रहेगा। अब सुनिए, मैं बताता हूँ एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ जी। सब लोग कहते हैं कि सहाबा ने मनाया क्या या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया क्या, ठीक है ना? तो वो मनाते अगर मुरव्वजा तौर पर तो फिर तो वो सुन्नत होती जी। और हमारा दावा ही सुन्नत का नहीं है, हमारा तो मुस्तहब का है कि अगर कोई मनाता है तो उसको सवाब मिलता है, नहीं मनाता है तो कोई गुनहगार नहीं है। बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, ठीक। हाँ, तो जब मुस्तहब का दावा है तो मुस्तहब की ही दलील देंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पर दाढ़ी रखना सुन्नत है ना जी। अब कोई कहे भाई ये दाढ़ी फर्ज है, आप दिखाओ, तो दिखा पाएगा कोई? या फिर ऐसा जैसे नाखून काटना सुन्नत तरीके से काटने की दलील भी मिलती है ना जी। अब कोई कहे इसको भाई फर्ज है, साबित करो, तो फर्जियत की दलील देगा वो? तो पता चला जाहिल है वो जो दलील मांगता है इस तरह, है ना? अब आप जो है देवबंदी मौलवी से कहिए भाई उनका तो सुन्नत का दावा ही नहीं है, वो तो मुस्तहब का दावा कर रहे हैं, तो मुस्तहब की दलील मांगिए। आप सुन्नत की दलील क्यों मांग रहे हैं कि सहाबा ने मनाया क्या या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया क्या? ये कौन सी जहालत है? सुन्नत का दावा करते तो सुन्नत की दलील हम उनसे मांगते, वैसा नहीं तो फिर बहुत सारा अमल है कि जो बाद में लोगों ने इजाद किया और मुस्तहब अमल है। कोई अगर करता है, नहीं करता है तो गुनाह नहीं मिलता है, अगर करता है तो उसको सवाब मिलता है। जैसे मस्जिद में पैसा लगा देना, जी, है ना? मस्जिद में कोई पैसा लगाता है मस्जिद में कोई पैसा लगाता है तो उसको सवाब मिलता है। जैसे मस्जिद में पैसा लगा देना, है ना? मस्जिद में कोई पैसा लगाता है तो उसको सवाब मिलता है। जैसे मस्जिद में कोई पैसा लगा देना, है ना? मस्जिद में कोई पैसा लगाता है तो उसको सवाब मिलता है। जैसे मस्जिद में कोई पैसा लगाता है
तो वो कौन सा है, सुन्नत वाजिबा है? नहीं ना। अगर कोई लगाता तो सवाब मिलता है, नहीं लगाता तो उसको कोई गुनाह नहीं ना मिल रहा है। जी। हाँ, तो उसको मुस्तहब अच्छा अमल है भाई। कोई अगर बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, सजाता है, मस्जिद को सजाता है, या ये जो तबलीग में अब 6 दिन 3 दिन और 3 महीना ये सब निकालते हैं, क्या है ये? सहाबा कराम ने 3 दिन मुतय्यन किया था? नहीं किया था ना। हाँ, तो ये जी। मुतय्यन कर रहे हैं, तो ये बिदात नहीं होनी चाहिए? ये भी तो बिदात होनी चाहिए। मतलब साहबा से साबित कर दें कि 3 दिन गए थे, फिर 3 महीने के लिए गए थे, कि 40 दिन के लिए गए थे, ऐसा। हाँ, और वो भी मुसलमानों के पास जाते थे, वो तो गैर मुस्लिमों में जाते थे साहबा कराम तबलीग करने। और ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों में, ये हम जाते हैं, लोगों में ही जाते हैं, और दीन का काम है। दीन का काम करते हैं कि आवाम को मुसलमानों के पास में ही कलमा पढ़ा हुआ मुसलमान के पास जाते हैं और उनमें तफरका डाल देते हैं, और लोग फिरके फिरके में बढ़ जाते हैं। ये तो बिदात है असल में। आप खुद सोचिए, आप खुद पहले अहले सुन्नत व जमात हनफी रहे होंगे, जो मज़ारात की ताज़ीम करने वालों में से रहे होंगे, इसको बिदात नहीं कह रहे होंगे आप। आपको भी गुमराह किया उन लोगों ने, किया है कि नहीं किया है? नहीं, वल्लाहु आलम। हाँ, पहले क्या थे आप खुद सोचिए, पहले क्या थे? अगर आप नहीं थे तो आपके अब्बा तो जरूर थे अहले सुन्नत। और अब इन्हीं से जाकर आप पूछें तो ये कहेंगे हम तो दीन का काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, सहाबा ने किया था। तो सहाबा ने गैर मुस्लिम में किया था ना, तो उनको बोलो कि सहाबा ने गैर मुस्लिम में किया था, तुम्हारी जमात हमारे पास आई मुस्लिम के पास, और हमको डिवाइड कर दिया इस्लाह के नाम पे, है ना? जी जी। तो गलती पर कौन है? ठीक है, इंशाल्लाह तहकीक करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, तहकीक कीजिएगा तो हमारे पास फोन लगाइएगा, नंबर रख लीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अली खान है। अली खान साहब। हाँ, मुंबई में रहते हो? हाँ, मुंबई नहीं, यूपी में रहता हूँ, मुंबई में काम करने के लिए आता हूँ। और दूसरी बात कैसा है, वो बहानेबाजी करेगा। आप देवबंदी से मिलेंगे ना, वो दूर भागने के लिए, अरे छोड़ो उन लोगों को, नमाज पढ़ो। जैसे शुरुआत में आपको बताया होगा, इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, इस चीज़ों में मत पढ़ो, लड़ो मत, ये मत करो। लास्ट में क्या, ये बिदात, ये शिर्क सिखा दिया, है ना? यही हुआ ना आपके साथ? नहीं हुआ? देखेंगे, अल्लाह करीम देखेंगे वल्लाहु आलम। नहीं, ऐसा हुआ आपके साथ या नहीं हुआ? वो सच बताइए, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है। हुआ। नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ। आप नमाजी थे जी। तो कैसे पढ़े, आप कैसे देवबंदी बने, वो बता दीजिए हमें। भाई देवबंदी भी नहीं हूँ। हाँ जी। फिर क्या हो? मैं आम मुसलमानों में से हूँ। अच्छा, आप मुसलमान हो? जी, आम मुसलमानों में से, जैसा आप हैं, जैसा मैं हूँ। अच्छा, तो आम मुसलमानों में से हो तो बिदात क्यों कह रहे हो? यानी किसी को आप पकड़े हुए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देवबंदी हो गए, काफिर हो गए, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। समझ रहे हो ना? मैं तो ये सब नहीं कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपकी इस्लाह की जरूरत है आपकी। समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, तो इस्लाह की आपकी ज़रूरत है कि आप अपनी इस्लाह फरमाएं, और सही तरह से जो भी है हमारे पास भी जुड़े रहें। जो चाहिए वो पूछें, हम उसको किताबों से देंगे। ये जितने मुहद्दिसीन का नाम लिया मैं किताबों से पेश कर दूंगा। और हमने अपने यूट्यूब चैनल पे और डाला भी है, किताब दिखाया भी है, देखिए। वो लिंक है आपका यूट्यूब का? हाँ, लिंक मैं भेज दूंगा आपके पास। जी। हाँ, उसमें देखिएगा, मैं दिखा दूंगा। और कहने का मतलब है कि देखिए, हमें पुराने लोगों के तरीके पर चलना है, सहाबा के तरीके पर। उनसे अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो ताबाइन के तरीके पर, ताबाइन में अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो तबा ताबाइन, अइम्मा मुस्तहिदीन, औलिया कामिलीन, जिन पर ईमान की मोहर लगी हो उनके साथ चलना है, सच्चों के साथ चलना है। कुरान में क्या हुक्म है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, है ना? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और क्या करो? सच्चों के साथ हो जाओ। जो झूठ बोलते हो उनके साथ नहीं, जो सच्चों के साथ। और सच्चे कौन है? जिनके बारे में किसी ने कहा नहीं हो कि ये झूठे हैं। समझ रहे हो? जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं या जितने भी बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, उनके बारे में किसी ने झूठी तोहमत ना लगाई हो, बस समझ लो उनके तरीके पर हमें चलना है। तो जो आलिम अगर कोई बात बताता है तो इन दरमियान में जितने मुहद्दिस, मुफस्सिर और ये सब गुजरे हैं, उनका नाम नहीं लेता है तो समझ लो वो झूठा है, वो अपनी राय पेश कर रहा है। तो अपनी राय पेश करने वाले तो दुनिया में बहुत है। कादियानी भी अपनी राय पेश कर रहा है, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान लिया,
शिया भी कुरान ही पेश कर रहा है, हदीस पढ़ता है, सब लोग पढ़ते हैं और ये करते हैं, लेकिन बीच के दरमियान में जो लोग हैं उनको छोड़ देते हैं। अपनी अपनी राय पेश करते करते एक एक फिरका बना लेते हैं। भाई 10 आदमी 10 आलिम रहेगा और अपनी राय से समझेगा तो सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती है, अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर मुहद्दिस को पकड़ लेंगे तो उसी पर सबकी राय रहेगी, तो फिरका वारियत नहीं फैलेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। हाँ, तो जो फिरका वारियत फैला रहा है वही चापलूसी करता है और वही बिल में दुबक के बैठता है, वो सामना कभी नहीं कर सकता। जो हक होता है वो सामना करेगा। यार अगर आपके पास खरा सोना है और कोई कहे कि भाई आपके पास डुप्लीकेट है, तो आप दिखाने में शर्माएंगे? आप तो सबके पास ले जाके दिखाएंगे, भाई देखो मेरे पास ओरिजिनल है। जी। है कि नहीं? जी सही बात। आपके पास जो ओरिजिनल, तो जो ओरिजिनल दीन जिनके पास है असल, वो उसमें आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चैलेंज कौन करता है और उलमा के सामने बैठने को कौन तैयार है? वही जो अहले सुन्नत व जमात हनफी हैं, जिनको आज बरेलवी भी कहा जाता है। उन्हीं के उलमा है जो ऐसा चैलेंज करते हैं कि मैं सामने बैठो बात करो। बाकी हर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, बहाने ही सिर्फ बनाते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अगर आप हैं देख रहे हो जानते होंगे, तो पता चला सबके पास खरा सोना नहीं है, मिलावट है, इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं, बहाने बनाते हैं, वीडियो बना के वीडियो खेलते हैं। अच्छी बात सही है कि नहीं? अगर आपके पास अकल है, अगर आप पढ़े हैं, तो आप तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही है, है ना? जी। हाँ, तो होशियार रहिए, और कहने का मतलब है जुड़े रहिए, जो चाहिए वो पूछिए, मैं बताऊंगा, और अपनी इस्लाह फरमाएं, झूठों से दूर रहें, अपना ईमान बचाएं। ठीक है ना? जी। मेरा आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं? आप कभी भी हमारे पास फोन लगाए कि भाई ऐसा ऐसा है, फला आलिम ने ये बात कही है, क्या ये सही है? इस पर अगर है कोई दलील तो हमें किताब से दिखा दीजिए, तो मैं दिखा दूंगा। है कि नहीं? जी। अरे यार, आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारा क्या चला जाएगा अगर आप जन्नत में जाएंगे? उल्टा हमको उसका नेकी मिलेगा कि आपकी अगर इस्लाह मैं कर सकूं तो। है कि नहीं? जी। हाँ, ठीक बात है। ठीक है, दुआओं की दरखास्त। हाँ जरूर। और ये नंबर लिख लीजिएगा। जी, सेव कर लूंगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक। आप व्हाट्सएप में लिंक भेज दीजिए। हाँ ठीक है, आपका नाम भी भेज दीजिए। हाँ ठीक है, मैं भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।